अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 टॉपिक नंबर 4 जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। DNA is genetic material which can replicate. The genetic material is in the form of specific sequence of nucleotides along DNA strand. क्या है बच्चों, DNA जेनेटिक मटेरियल है जो कि रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है, genetic material in the form of sequences of nucleotides along DNA strand. The DNA inherited by organism forms specific trait by directing senses of protein that act as catalyst and catalyzes a specific chemical reaction of cell. बच्चों, जो डीएनए इनहेरिटेड होता है बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या करता है, स्पेसिफिक ट्रेट्स बनाता है बाय डायरेक्टिंग सेंसेस ऑफ प्रोटीन। ये वो एक प्रोटीन सेंसेस को डायरेक्ट करता है जो कि एक्ट करती है एज कैटलिस्ट और कैटलाइज करता है स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल। Thus, gene expresses itself in protein or enzyme which control development of specific character or function. कह रहा है बच्चों, जो जीन है वो एक्सप्रेस करता है खुद को ये प्रोटीन और एंजाइम में जो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर और फंक्शन। वी कैन से दैट प्रोटीन्स आर लिंक बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। Gene expression or protein synthesis include transcription and translation. The idea that DNA make protein by an intermediate RNA is known as central dogma of molecular genetics. क्या बच्चों, जो जीन एक्सप्रेशन है या प्रोटीन सिंथेसिस, इसके दो स्टेप्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये आइडिया which makes proteins by intermediate RNA is known as central dogma of life. It involves two processes, transcription and translation. First of all, we see what is transcription. Transcription is synthesis of RNA from DNA. बच्चों, DNA से जो RNA बनने का प्रोसेस है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। It is first step of gene expression. It occurs in G0, G1 and G2 phases of cell cycle. It requires only one enzyme to be completed, iRNA polymerase. However, it is a continuous process. For convenience, we can divide it into three phases: initiation, elongation and termination. कह रहे बच्चों, जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है इसको भी आप थ्री फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। अब हम ट्रांसक्रिप्शन की थ्री फेजेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशिएशन फेज। Transcription begins with binding of RNA polymerase at promoter region or regulatory region of gene which comprise binding site for attachment of RNA polymerase. ऐसा बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन कब स्टार्ट होती है, जब RNA polymerase बाइंड करता है प्रोमोटर रीजन के ऊपर। और प्रोमोटर रीजन क्या है, रीजन ऑफ जीन है which comprise binding site for attachment of RNA polymerase. In prokaryote, these binding sites are TATAT, also called minus 10 sequence, and TTGACA, also called minus 35 sequence. Whereas in eukaryote, Tata box, also called minus 25 sequence, CAAT sequence, also called minus 80 sequence, and GC rich box, also called minus 90 sequence. Names of these sequences minus 10, minus 35, minus 25 or minus 80 refer to their position in promoter region that these sequences are located approximately how many nucleotides before transcription start point of gene. है ना बच्चों, ये जो इनके सीक्वेंसेस के जो डायब है माइनस 10, माइनस 35, माइनस 80, ये क्या बता रहे होते हैं, ये इनकी पोजीशन बता रहे होते हैं प्रोमोटर रीजन के अंदर कि ये सीक्वेंसेस कहाँ पे पाए जाते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं बिफोर स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट। ठीक है, ये आप देखिए, आपको एक फिगर शो हो रही होगी, फिगर 13.12, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर रीजन। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। अब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, उसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, कॉल्ड कोर एंजाइम
while sigma factor is required for RNA polymerase to bind to promoter. The core enzyme and sigma factor together constitute a holoenzyme. क्या है बच्चों, कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर उनको टुगेदर हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम. once RNA polymerase is attached on promoter, the sigma factor is removed and core enzyme catalyzes remaining process. यानी जब एक दफा RNA polymerase promoter के साथ जाके अटैच हो जाता है तो जो सिग्मा फैक्टर है वो रिमूव हो जाएगा और जो कोर एंजाइम है वो रिएक्शन को क्या करेगा, कैटलाइज करेगा. It is similar to DNA polymerase in that it also adds nucleotide to 3' end of growing polypeptide chain, but unlike DNA polymerase, it does not require primer to perform polymerase activity. कह रहा है कि ये भी डीएनए पॉलीमरेज से सिमिलर ही काम करता है कि ये भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में, लेकिन अनलाइक डीएनए इसको प्राइमर नहीं चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए. इन प्रोकैरियोट्स only one type of RNA polymerase is found, while in eukaryote, three types of RNA polymerases. RNA polymerase 1, which synthesizes ribosomal RNA, RNA polymerase 2, which synthesizes messenger RNA, and RNA polymerase 3, which synthesizes transfer RNA is present. ठीक है. As the RNA polymerase bind to promoter, DNA duplex become unwind, base pairs are broken, and bubble-like structure transcription bubble appear. कह रहा बच्चों आरएनए पॉलीमरेज जो ही बाइट करेगा प्रमोटर के साथ, जो डीएनए डुप्लेक्स है वो अनवाइड हो जाएगी, बेस पेयर्स ब्रोकन डाउन हो जाएगी और एक बबल स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल. ये साइड में देखिए फिगर 13.14 स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज शो किया हुआ है. ये देखिए दो इसके हमारे पास अल्फा यूनिट से दो बीटा है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, सिग्मा फैक्टर भी है. ठीक है. नेक्स्ट इज इलॉन्गेशन फेज. ये थी हमारे पास पहले इनिशिएशन फेज और नेक्स्ट है हमारे पास इलॉन्गेशन फेज. ये देखिए फिगर 13.15 प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन शो किया हुआ है जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या हुई है, इनिशिएशन हुई है, आरएनए सिंथेसिस क्या स्टार्ट हुई है, देन इलॉन्गेशन हुई है एंड देन टर्मिनेशन. As RNA polymerase bind to promoter, it begins to arrange and polymerize ribonucleotide triphosphates (RNTP), a ribonucleotide complementary to template strand of the DNA. यानी कि जो ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, अरेंज करना शुरू कर देगा और पॉलीमराइज करना शुरू कर देगा आरएनटीपीस को. ठीक है. इट डज नॉट रिक्वायर प्राइमर टू इनिशिएट पॉलीमराइजेशन. इसको प्राइमर नहीं चाहिए पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करने के लिए. वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ जीन एक्ट एज टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन. क्या है कि जो दो स्ट्रैंड में से जो एक स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए. दिस टेम्पलेट स्ट्रैंड इज आल्सो कॉल्ड एंटीसेंस बिकॉज मैसेंजर आरएनए इज कम्प्लीमेंट्री टू दिस स्ट्रैंड. द अदर स्ट्रैंड ऑफ जीन इज कॉल्ड कोडिंग access strand. In elongation phase, RNA polymerase keep on moving from 5' to 3' end of RNA toward terminator region of gene. Beside it, transcription bubble also move, leaving the growing strand protruding from bubble. This event continues till RNA polymerase reaches the terminator region of the gene. Next is termination phase. The sequence of terminator region stop the synthesis of messenger RNA. कह रहे बच्चों जो terminator region का जो सीक्वेंस होता है वो क्या कर देता है, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है. ठीक है. द टर्मिनेटर रीजन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर्स फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ एटी बेस पेयर्स. द पार्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए which is transcribed in this region projects to form a loop-like structure called GC hairpin. कह रहा है कि मैसेंजर आरएनए का वो पार्ट जो इस रीजन में ट्रांसक्राइब होता है वो एक लूप-लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको आप GC hairpin कहते हैं, followed by a small tail of polynucleotides. The GC hairpin causes RNA polymerase to stop synthesis of RNA. नीचे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फिगर 13.17 GC hairpin शो हो रही है एंड पोलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. ये देखिए यू यू आ गया टर्मिनेटर सीक्वेंस है. ठीक है. इसके बाद स्टॉप हो जाएगी मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस. नेक्स्ट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए. जब ट्रांसक्रिप्शन होगी डीएनए से हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन गया
ठीक है, डबल ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड लिखने के सिंह बन गया। उसके बाद क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद भी कुछ मॉडिफिकेशन होती है तो वो हमने वो पढ़ी है। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो डिले बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एज मैसेंजर आरएनए emerges from DNA, it undergoes translation due to absence of a definite nucleus. कह रहे हैं बच्चों प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कोई डिले नहीं होता, और जो ही मैसेंजर आरएनए बनता है वो ट्रांसलेशन में चला जाता है, यानी उस डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं, तो वो फौरन प्रोटीन बना लेगा। ठीक है। ऑन अदर हैंड इन यूकैरियोटिक सेल द pre-messenger RNA, newly synthesized messenger RNA has to be modified into mature or functional messenger RNA because transcription occurs in nucleus while translation in cytoplasm. So messenger RNA has to move from nucleus to cytoplasm, and during this journey enzymes like phosphatases and nucleases may degrade it. कह रहे बच्चों यूकैरियोट्स के अंदर जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए होता है उसको पहले मॉडिफाई हो रहा होता है, यानी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आती है ताकि क्योंकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस के अंदर हुई है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर था तो वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन हुई और डीएनए से आरएनए बन गया। लेकिन कह रहे हैं जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है, तो इसलिए जो मैसेंजर आरएनए है उसको आप ट्रेवल कर रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, और इस जर्नी के दौरान जो एंजाइम्स है वो उसको डिग्रेड भी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। फर्दरमोर यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए आल्सो कंटेन non-coding region called introns which are removed and supplied during this process. इसके अलावा कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है उसके पास कुछ नॉन कोडिंग रीजन भी होता है जिसको हम इंट्रॉन कहते हैं, इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स। इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग रीजन होता है, एक्सॉन्स जो कोडिंग रीजन। ठीक है, तो इंट्रॉन जो होते हैं उनको भी हमने रिमूव करना होता है। Post translational modification therefore involve two events: addition of a cap and tail to protect it from degradation and RNA splicing to remove non-coding sequence. तो कह रहे हैं तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में दो इवेंट्स होते हैं, एक तो हम कैप और टेल ऐड करते हैं ताकि जो मैसेंजर आरएनए वो डिग्रेड होने से बच जाए, दूसरा आरएनए की हम स्प्लाइसिंग करते हैं यानी उसमें से जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। A cap is in the form of 7-methyl GTP which is linked from 5 to 5 prime end of messenger RNA. A modification also takes place at opposite end of RNA transcript in the form of small chain of 30 to 500 NED nucleotides called poly A tail, which is attached to the 3' end of messenger RNA. These two modifications prevent messenger RNA to be degraded by phosphatases and nucleases. Next is the removal of introns and maturation of primary messenger RNA to secondary or functional messenger RNA is called RNA splicing. Next step होगा modification का RNA splicing. इसमें क्या होगा कि इंट्रॉन्स को हम रिमूव कर देंगे और जो प्राइमरी मैसेंजर आरएनए है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी और फंक्शनल मैसेंजर आरएनए में। इसको हम कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। Splicing is catalyzed by spliceosomes, which is large RNA protein complex. Later on, the spliced exon fragments are joined together with the help of RNA ligase enzyme. ये देखिए नीचे आपको एक फिगर शो रही होगी, फिगर 13.18 मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स बताई हुई है। देखिए डीएनए में हमारे पास एक्सॉन्स भी है, इंट्रॉन्स भी है। जो इंट्रॉन है वो नॉन कोडिंग पार्ट है, ट्रांसक्रिप्शन हुई पहले तो उससे हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन गया, प्राइमरी मैसेंजर आरएनए। ठीक है, देन क्या हुआ हमारे पास उसके साथ पहले पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हुई। पहले देखिए इसके साथ 5 प्राइम पे कैप अटैच होगी, 3 प्राइम पे पोली ए टेल अटैच होगी। ठीक है, पोली ए टेल अटैच होगी। ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करेगी। देन क्या होगा उसके बाद हमारे पास स्प्लाइसिंग होगी। ठीक है, और ये जो हमारे पास इंट्रॉज है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एग्जॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, उससे हमारे पास क्या बच जाएगा सेकेंडरी और मैच्योर मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट इज जेनेटिक कोड। It has been discussed earlier in the chapter a gene specific segment of DNA which encodes as a particular polypeptide or protein. कह रहे बच्चों आप डिस्कस कर चुके हैं कि जीन क्या होता है, एक स्पेसिफिक सेगमेंट या पार्ट होता है डीएनए का जो किसी प्रोटीन की सेंसिस को इनकोड करता है। Therefore, to the order of amino acid in polypeptide is according to sequence of nucleotides in part of DNA. तो कह रहा है कि जो
अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है इन पार्ट ऑफ डीएनए। दिस रिलेशनशिप बिटवीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। कहते हैं ये जो रिलेशन है बिटवीन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बीच में, इसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द इंफॉर्मेशन इन डीएनए फॉर सेंसिस द प्रोटीन कॉल्ड एज जेनेटिक कोड व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर प्रोटीन के सेंसिस के लिए, उसको हम कहते हैं ये कोड, जेनेटिक कोड है। ठीक है। द मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ रैंडम सीक्वेंस ऑफ ओनली 4 काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। कह रहे कि जो मैसेंजर आरएनए है उसके पास एक रैंडम सीक्वेंस होता है 4 नाइट्रोजनस बेसिस का। ए फॉर एडेनिन, guanine, cytosine and uracil. The question is that how can a code with 4-letter alphabet specify a protein which at any given point contains one of 20 different amino acids? Clearly, a single base cannot specify a single amino acid. If one base specify a single amino acid, then only 4 different amino acids could be encoded for. क्या है कि एक जो हमारे पास बेस है जैसे एडिन, वो एक जो वायरस को रिकॉर्ड नहीं करती, क्योंकि वायरस हमारे पास तकरीबन 20 टाइप्स के होते हैं। क्या अगर कह रहा है कि अगर एक बेस एक ही वायरस को कोड कर रही होती तो हमारे पास 4 तरह के वायरस होते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स containing only 4 different viruses would be formed. Nor is it feasible for just 2 bases to specify a single amino acid. Only 16 amino acids could be recorded for. But 3 bases are sufficient. With 3 bases, a total of 64 combinations are possible. Each is specific for a particular amino acid. Therefore, a triplet of base log length of messenger RNA will specify a particular amino acid is called codon. तो ये देखिए कह रहा है कि ट्रिपलेट ऑफ बेसिस यानी 3 बेसिस का कॉम्बिनेशन जो प्रेजेंट अलॉन्ग मैसेंजर आरएनए जो एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, उसको हम कहते हैं ये कोडॉन है। ठीक है। Triplet of bases which specify a particular amino acid is called codon. ये देखिए बच्चों, फिगर 13.19 में टाइप्स ऑफ कोडॉन शो किए हुए। ये देखिए, अगर यू 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 है तो ये क्या कौन से अमीनो एसिड को इनकोड कर रहा है? फिनाइलएलानीन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। देन हमारे पास देयर आर टोटल 64 कोडॉन्स। टोटल 64 कोडॉन्स है हमारे पास। 3 ऑफ दीज आर कॉल्ड स्टॉप कोडॉन्स, यूजीए, यूएजी एंड यूएई। क्या है इस 64 में से 3 को हम स्टॉप कोडॉन्स कहते हैं, और वो स्टॉप कोडॉन्स को से यूजीए, यूएजी and UAA. One of these must be present at end of messenger RNA that indicate messages over. क्या कि स्टॉप को डालना तो यानी ये मैसेंजर आरएनए की सेंसिस को स्टॉप करेगा, तो ये हमेशा मैसेंजर आरएनए के एंड पे इन तीनों में से एक लाजमी प्रेजेंट होगा। Since these codons do not encode any amino acid, sense called nonsense codons. क्या है क्योंकि ये जो कोडाज है, ये जो 3 है, तो ये किसी amino acid को इनकोड नहीं करते, नहीं बनाते, इसलिए हम इनको नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। While all other are called sense codons, one of these codons, AUG methionine, also act as start codon. अब इनमें से एक जो कोडान है AUG, जो मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है, उसको हम स्टार्ट कोडान भी कहते हैं। which must be present at beginning of sequences that code for amino acid chain. Genetic code has following characteristics. कह रहे हैं ये जो जेनेटिक कोड है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। ठीक है। Some amino acids are only coded by single codon, while others are recorded by up to 4 codon, and amino acids leucine and serine are recorded by 6 codon. This property is known as code degeneracy. कुछ कह रहे हैं जो अमीनो एसिड है वो सिंगल कोडॉन से ही इनकोड होते हैं, कुछ जो है अप टू 4 कोडॉन से इनकोड होते हैं, और जो 2 है हमारे पास ल्यूसीन और सीरीन, इनको 6 कोडॉन इनकोड कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोड डीजेनरेसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज the genetic code is universal. It is same in all organisms. For example, AGA specify arginine in bacteria, in human and all organisms. वो genetic code has been studied. एग्जाम्पल के तौर पे उन्हें बताया कि जो AGA कोड है ये हमेशा आर्जिनिन ही बनाता है। ठीक है, आर्जिनिन अमीनो एसिड बैक्टीरिया में भी, ह्यूमंस में भी, बाकी ऑर्गेनिज्म में भी। Because of universality of codon, genes can be transferred from one organism to another and successfully transcribed and translated in their new host. The study of genetic code of mitochondrial DNA, however, showed that genetic code is not universal. For example, UGA codon is normally a stop codon in mitochondria,
It reads as tryptophan. Likewise, AUA was read as methionine instead of isoleucine and AGA and AGA for termination of protein synthesis is instead of arginine. There is no punctuation between each codon. It means there is no gap between two codons. Next is the genetic code is non-overlapping. Messenger RNA sequence AUGACGCGECA is not read as AUG, UGA, GAG, etc. It will be read as AUG, AGC, GCA. तो ये नॉन ओवरलैपिंग है. तो ट्रांसक्रिप्शन हमारी कंप्लीट होगी कि जो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए होता है फ्रॉम डीएनए उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. वो हमारी कंप्लीट होगी. उसकी 3 फेजेस थी, इनिशिएशन, लॉन्गेशन, टर्मिनेशन. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेशन. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए. पहले हमारे पास डीएनए से आरएनए बना, उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा. आरएनए से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं. ट्रांसलेशन इज सेकंड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ओवरऑल जीन एक्सप्रेशन के 2 स्टेप्स है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. A translation messenger RNA produced by transcription is decoded by ribosome, produce a specific amino acid chain or polypeptide that will later fold into active protein. कह रहे बच्चों ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए बना था ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू उसको डी कोड करता है कौन, राइबोसोम, और वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड की चेन बना लेता है जो लेटर में फोल्ड होके बाद में फोल्ड होके एक एक्टिव प्रोटीन बना लेती है. ठीक है. Although translation is a continuous process, but for convenience we will discuss it in 4 phases. Activation of amino acid, formation of initiation complex, elongation and termination. Translation की भी 4 phases है. कौन कौन सी? Activation of amino acid, formation of initiation complex, elongation and termination. First one is activation of amino acid. Activation of amino acid refer to binding of free amino acid dispersed in cytoplasm to 3' end of particular transfer RNA molecules. In this way, a complex is formed called amino acyl transfer RNA complex. करेक्ट. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में क्या मतलब है कि जो हमारे पास फ्री अमीनो एसिड्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के 3' एंड में. इस तरह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम कहते हैं अमीनो acyl transfer RNA complex. This binding is catalyzed by amino acyl transfer RNA synthase एक्टिवेशन एंजाइम. और ये बाइंडिंग में कौन हेल्प करता है, कौन सा एंजाइम ये बाइंड करवाता है अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर आरएनए के साथ? अमीनो acyl transfer RNA synthase एंजाइम. ठीक है. एक्टिवेशन एंजाइम भी कहते हैं इसको. Various amino acids that are to take part in polypeptide formation have been continuously activated through the process of translation. ये देखिए फिगर 13.20 में एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड शो की हुई है. नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एक्चुअली बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन से. इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए एंड फर्स्ट अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स. और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है कि जब राइबोसोमल सब यूनिट्स मैसेंजर आरएनए और पहला अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स जब कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. First, a transfer RNA molecule carry chemically modified methionine called N-formyl methionine bind to smaller ribosomal subunit. This binding is controlled by enzyme called initiation factor. कहना सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए जिसके पास केमिकली मॉडिफाइड मिथ्योनिन प्रेजेंट है वो बाइंड कर देगा राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के पास. बच्चों राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, पढ़ा है ना आपने स्ट्रक्चर में. लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट. तो सबसे पहले जो ट्रांसफर आरएनए है वो जाके राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होगा. बाइंडिंग इस कंट्रोल, इस बाइंडिंग को कौन कंट्रोल करवाता है, इनिशिएशन फैक्टर. एट सेम टाइम 5' end of messenger RNA also bind to smaller subunit of ribosome with the help of another initiation factor. साथ ही क्या होगा कि जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास था उसका जो 5' end है वो भी राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ जाके अटैच कर देगा. ठीक है. Initiation complex is completed when larger subunit of ribosome is placed over smaller subunit. कह रहा है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कब कंप्लीट होगा कि जब राइबोसोम का स्मॉलर सबयूनिट है वो आके ऊपर प्लेस हो जाएगा स्मॉलर सबयूनिट के. ठीक है. द रीजन ऑफ स्मॉलर सबयूनिट वेयर फर्स्ट अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए complex is attached is called P site.
कह रहा है कि वो रीजन स्मॉलर सब यूनिट का जहाँ पे आके फर्स्ट बाइडोसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स अटैच हुआ था उसको हम कहेंगे पी साइट, पी फॉर पेप्टाइडल साइट। Here peptide bonds will be formed between amino acid during elongation phase. Nearby, two other sites are also established. कह रहे उसके साथ साथ दो और साइट एस्टेब्लिश हो गया ही। A site which is called aminosyl site where successive transfer RNAs during amino acid will be attached, and E site exert site where empty transfer RNAs will leave ribosome during elongation phase. ये देखिए फिगर 13.21 में फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स शो किया हुआ है। एंड नीचे हमारे पास है फिगर 13.22 में चेन एलॉन्गेशन ट्रांसलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड एलॉन्गेशन। इन दिस फेज राइबोसोमल यूनिट्स मूव अलोंग मैसेंजर आरएनए amino acids are brought by transfer RNA which are joined together to form polypeptide chain। कह रहे बच्चों इस फेज में क्या होगा कि जो राइबोसोमल यूनिट्स है वो मैसेंजर आरएनए के साथ साथ मूव करेंगे, अमीनो एसिड्स को वो कौन लेकर आएगा, ट्रांसफर आरएनए, और उनको वो जाहिर करते जाएंगे टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। This is accomplished by three steps which are repeated again and again throughout this phase. Whichever codon of messenger RNA is exposed at A site, its anticodon bearing aminosyl transfer RNA complex bind to it with the help of enzyme elongation factor। कह रहा है कि जो भी कोडान मैसेंजर आरएनए की ए साइट पे एक्सपोज्ड होगा उसका जो एंटी कोडान है ठीक है वो बाइंड कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एलॉन्गेशन फैक्टर। देन एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज अबाइड फ्रॉम पी साइड से वो आएगा, इट रिमूव अमीनो एसिड फ्रॉम ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट एट पी साइट एंड बाइंड into the newly coming amino acid with the help of peptide bond। Third one is the ribosomal subunits slightly move along messenger RNA from 5' to 3' direction so that a new codon is exposed at A site। ये जो राइबोसोमल यूनिट्स है वो मूव करते जाएंगे ताकि नया जो कोडान है वो ए साइट पे एक्सपोज्ड आ जाए। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एज अ रिजल्ट एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए इज रीच्ड एट ई साइट to leave the ribosome, while other transfer RNA bearing chain of amino acid is shifted from A to P site and another codon is exposed to A site। These three steps are repeated again and again until stop codon is reached at A site। कह रहा है बच्चों ये स्टेप चलता रहेगा, थ्री स्टेप until जो A site है वहां पे stop codon आ जाएगा। Next phase is termination। Elongation continues in this fashion until a chain terminating stop codon is exposed at A site। ये देखिए फिगर 13.23 में टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन शो की हुई है। स्टॉप कोडॉन्स डू नॉट बाइंड टू एनी ट्रांसफर आरएनए। है बच्चों जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं ये किसी ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड नहीं करते, बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रिलीज फैक्टर that terminate the process of translation and polypeptide is released from transfer RNA। The transfer RNA is released from ribosome and the ribosomal subunit separate from messenger RNA। यानी जब स्टॉप कोडॉन आएगा तो ये जो हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फेट ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन की जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हुई है उसकी फेट क्या होगी। द पॉलीपेप्टाइड चेन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन फोर्स एंड फॉर्म्स थ्री डायमेंशनल प्रोटीन शेप। क्या कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है टर्मिनेशन ट्रांसलेशन की टर्मिनेशन के बाद खत्म होने के बाद फोल्ड होगी ये चेन और एक थ्री डायमेंशनल प्रोटीन शेप बना लेगी। इट देन इंटर गोल्जी कम्प्लेक्स फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन। देन ये गोल्जी कम्प्लेक्स में इंटर हो जाएगी मजीद मॉडिफिकेशन के लिए। दिस प्रोटीन कैन बी यूज्ड विद इन और आउटसाइड सेल दैट सिंथेसाइज्ड इट। कह रहा है ये जो प्रोटीन हमारे पास बनी है इसको हम उस सेल के अंदर भी यूज कर सकते हैं और आउटसाइड द सेल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी सेलुलर एंजाइम, ये कोई एंजाइम भी हो सकता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन भी हो सकती है और हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकती है। अ सेल कैन सिक्रीट प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन हार्मोन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा। नीचे देखिए बच्चों में एक टेबल दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। क्या कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या आ सकता है शॉर्ट में।
Prokaryotes. Ribosomes are smaller in size, consist of a 50s large subunit and 30s small subunit which bind together to form 70s ribosome. प्रोकैरियोट्स के अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम बच्चों ऐसे ऑर्गेनेलीज है दोनों प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है। लेकिन कह रहे हैं जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स है वो स्मॉल इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम। और कह रहे हैं उनके जो दो सब यूनिट्स है, एक लार्ज और स्मॉल सब यूनिट होता है ना, तो उनका लार्ज सब यूनिट 50s होता है और स्मॉल वाला 30s होता है और टुगेदर वो 30s राइबोसोम बनाते हैं। जबकि यूकैरियोट्स की आप बात करें तो राइबोसोम लार्जर होते हैं और उनका जो लार्जेस्ट सब यूनिट है तो वो 60s होता है, स्मॉलर 40s होता है और वो टुगेदर वो बाइट करके 80s राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राइबोसोम अक्कर इन साइटोसोल। उनके राइबोसोम साइटोसोल में होते हैं। राइबोसोम अक्कर इन साइटोसोल एंड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द इनिशिएटिंग अमीनो एसिड इज मॉडिफाइड IN फॉर्माइल मीथियोनिन। ओनली वन टाइप ऑफ इनिशिएशन फैक्टर इज यूज्ड। कह रहा है कि उनमें जो इनिशिएटिंग अमीनो एसिड है वो N फॉर्माइल मीथियोनिन है और एक तरह का इनिशिएशन फैक्टर यूज होता है। द इनिशिएटिंग अमीनो एसिड इज मीथियोनिन। It is not modified and more than one type of initiator factors are used. Two release factors are used and single release factor is used. So students हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।